वंदे गुरुवरम वंदे भगवन अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदन। In the last session, we discussed at large about the power of silence, and we had Shraddha with us, who very shockingly and surprisingly asked me that what is the power hidden in the silence. We tried to explain in the different ways. We are again back to Shraddha. We will again ask some more questions on this subject, and we will try to understand the subject more and more clearly, more effectively, and more with full relevance in today's society. Yes, sir. So, Guruji, in the last session, you were talking about silence and the power it has in a way that when we're silent, we're actually preserving our energy. And when we speak, when not spoken to, then it's like we're letting go of energy that we don't even need to go. So, we're wasting our energy in a way. Yes. And you also spoke about how it's really like silence doesn't always mean like only being quiet. Like sometimes when you have to speak like speaking to a helper, and sometimes using actions is also important, sometimes using words, but being silent holds a special power. So I wanted to know from you ki, what are the advantages and disadvantages of this power of being silent, like Yes. how do we differentiate it? Yes, Rita. Good. You have rightly understood that basically the whole power lies with our silence. The power gets wasted. Why? How? When we speak. That takes away so much of our power. So when we are silent, we are preserving lots of energy. अब एनर्जी का देखो दो उपयोग हो सकता है, either we waste the energy or we make the best use of the energy. Either use or misuse. अगर आज तुम्हारे पास certain amount of money है, मान लो 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास है, you have got both the choices. You can make good use of your 1 crore rupees or you can just अपने law of moderation पे बात हुई थी ना, law of minimalization and moderation पे, कि how you make use of that 1 crore. Or even our body, how to make best use of our body or how to abuse our body. You can abuse according to your mind, according to your thoughts, according to your feelings. Everything we can either use the best use or we can misuse. So when we abuse, that means we misuse. So that power का या तो हम misuse कर सकते हैं, और best use क्या है? Spiritual upliftment, attaining of the knowledge, elevate ourselves. अपना मेन विषय किस पे चल रहा है? Elevation. Elevate yourself, elevate your power, and elevate your personality. And one of the very significant and important factor of elevation is being silent. एक कहावत आती है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है. जो आदमी ज्यादा बोलता है उसकी बात कौन सुनता है? कोई नहीं. बोलते हैं मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, दैट मीन्स उसके एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है. तो शब्दों में इतनी शक्तियां है. आज देखो, अगर आदमी गलत बोलता है, गलत विचारधारा से बोलता है, गलत तरीके से बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो उसकी वाणी जब मिसयूज होती है, अब्यूज होती है, तो क्या होता है? वो कुंभकर्ण कहलाता है. कुंभकर्ण ने अपनी साधना की, जब भगवान प्रकट हुए तो उसको चाहिए था इंद्रासन, और उसके मुंह से क्या निकला? निंद्रासन. कहानी सुनी हुई है ना, कि नहीं उतना मालूम होगा, ज्यादा नहीं, मतलब उसको वरदान मांगना था रावण को, कुंभकर्ण को, और उसको चाहिए क्या था? इंद्रासन. कि गॉड यू ब्लेस मी टू बिकम द किंग ऑफ द हेवन. इंद्रासन. लेकिन चूंकि बिकॉज वो राक्षस प्रवृत्ति का था, उसके भीतर जो शक्तियां थी वो क्या थी? नेगेटिव थी. तो उसके मुंह से क्या निकला? निंद्रासन. माने मेरे को सोया का आसन दे दीजिए. 6 महीना सोता था, फिर रावण के बहुत आग्रह करने पे बोले अच्छा एक बार 6 महीने में उठेगा खाली, नहीं तो एज गुड एज इज इन कोमा. तो अपने लिए क्या मांग लिया? वो वरदान मांगा कि अभिशाप मांगा?
Like he asked he asked to go to heaven, but he could not get that, so he Yes. became like a तो sleeping शब्द भी person. उसका साथ नहीं देते. Yeah, यानी our biggest support system is our words. yeah, Biggest support system is our speech. The biggest power lies in your words. शब्द मंत्र बन जाते हैं. ऐसा बोलो जैसे कोई भगवान देव प्रकट होते हैं तो बोलते हैं तथास्तु. मतलब उनके इस वर्ड में वो कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते, लेकिन तथास्तु माने पूरी कायनात लग जाती है. like when पूरी you say be blessed. बी ब्लेस्ड, राइट. Yeah, फिर कौन ब्लेस करता है उसको? पूरी कायनात, kind of, yeah, पूरी प्रकृति लग जाती है. क्यों? कि उसकी शब्दों की शक्तियां हैं. तो शक्तियां कहां से आई? दैट इज प्रिजर्व्ड विद इन हिम. दे डोंट वेस्ट देयर एनर्जी. तो आओ अब तुमको, जैसे तुमने कहा था एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, हाँ, तो 10 बिंदुओं से वो समाहित करते हैं इसके हाँ. एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ साथ में चलते रहेंगे. yes, तो ये बात तो ख्याल रहेगी ना कि स्पीच इज ओनली ए वे ऑफ एक्सप्रेशन. yes, So we can choose other means of to expression express ourselves. so that we can preserve our energy. तो पहला एडवांटेज क्या है? What is the advantage of being silent is preservation of energy. Don't waste. क्योंकि वही एनर्जी हमको सोचने के लिए, हमको समझने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, पैसा कमाई के लिए भी जरूरत पड़ सकती है. और अगर ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण, एक वर्ड तुमने सुना होगा ना कि एलिवेट योर एनर्जी, एनलाइटनमेंट. जो साधना करते हैं वो क्या करते हैं? बोलते रहते हैं क्या? No, they're quiet, ध्यान माने क्या होता है? आंखें बंद. just और meditating, मेडिटेटिंग मीन्स व्हाट? बी साइलेंट, being बी silent. स्टिल, बी साइलेंट. तो साइलेंस इज ए इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ ऑल काइंड ऑफ पेनेंस. और व्यवहार जगत में भी, जो डे टू डे लाइफ में भी, जो आज ज्यादा दिन भर बोलता रहता है तो शक्ति का हनन तो करता ही है, लेकिन वो बोलने के साथ शब्दों का भी दुरुपयोग होता है. तो दूसरा बिंदु इसका क्या होगा? जब बोलो तो ऐसा बोलो, जो मृदुता से बोलोगे कि शब्द मंत्र बन जाए. यानी जो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मीन्स व्हाट? कि व्हेन ही स्पीक्स ही जज ईच एंड एवरी वर्ड. तो एडवांटेज क्या है? अपना एक एनर्जी भी प्रिजर्व करता है और साथ में उनके शब्दों में जो शक्तियां रहती है भीतर की, वो प्रेषित होती है. यानी इट्स नॉट ए डाइल्यूटेड फॉर्म, इट इज इन द एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म. बोलते हैं ना कि वो शब्द अपने आप में इतनी शक्ति लेके आती है, जिसको मैं कहता हूं इतनी पॉजिटिविटी रहती है उनके शब्दों में कि वॉट एवर दे से विल हैपन. जैसे बोलते हैं ना इनके वाचिक सिद्धियां हैं, माने वो जो बोलेंगे वो हो जाएगा. होगा, हाँ, अगर उनके मुंह से एक बार निकल गया तथास्तु या बी ब्लेस्ड, माने वो काम होगा. नाउ उसका होना या नहीं होना किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारे फेथ पे. yeah, इफ यू डोंट हैव द फेथ, तुमने एनर्जी तो वहां से आई लेकिन तुमने उसको रिसीव नहीं की, yeah, बिकॉज तुम्हारे में डाउट आ गया. बोला तो है उन्होंने बी ब्लेस्ड, लेकिन होगा क्या? द डाउट हैज व्हाट इट डज, रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ दैट ब्लेसिंग्स. लेकिन अगर तुम्हें ये लगे अगर बोला है किसी साधक ने, किसी देव ने, किसी योगी ने अगर कहा है बी ब्लेस्ड या तथास्तु, तो क्या वो शंका करते थे कि गणेश जी ने गलत कहा कि सही कहा, कि शिव जी ने गलत कहा, कि विष्णु जी ने गलत कहा? नहीं. तो बी ब्लेस्ड मीन्स इट विल हैपन. इट हैज गॉट इट्स ओन हिडन पावर. power. नेक्स्ट. Ki, how do we? I just wanted to ask you, Ki, how do we practice this power of silence in our तो day-to-day पहले इसका life? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की जो बात चली थी वो पहले समझ लो, हाँ, और फिर मैं हाँ, बताऊंगा कि हाउ in टू connection प्रैक्टिस. to this, yeah, तो सबसे बड़ा और दूसरा एडवांटेज बताता हूँ. हाँ, A man of few words is always trustworthy. yes, very true. We trust him because वो थोड़ा सही बोलेगा, ज्यादा बकर बकर नहीं करेगा. और जो ज्यादा बोलेगा No, कोई नहीं सुनेगा, कोई bore सुनता होता ही नहीं है. हाँ, हो सकता है उसके भीतर उसने मक्खन मिलाई भी मिला के दे दी हो, हाँ. सत्य भी बोला, लेकिन वो बोलेगा यार nobody has the time. Today we are in the era of what? Information technology. जहाँ क्या है? You need only the exact information. Nobody wants to listen much. टेड टॉक को चलती थी ना, क्या भेजिएगा 10 मिनट की टॉक या 5 मिनट की टॉक जो भी हो. तो एक आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसकी ट्रस्टवर्दीनेस, क्रेडिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिज हाउ मच टाइम ही स्पेंड्स इन टॉकिंग और नॉट टॉकिंग. कम बोलो. जैसे एक विद्यार्थियों के लिए आता भी है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च, अल्पहारी मृदुभाषी. मतलब
विद्यार्थी के जो 5 गुण आते हैं, विद्यार्थी पंचलक्षणम, कि वो मृदुभाषी होगा। बताया था ना, जो बोलेगा सत्य बोलेगा, कम बोलेगा, मृदु बोलेगा, जब बुलाया जाए तभी बोलेगा, नहीं जरूर पर्पसफुल बोलेगा, बताया था ना ये बोलने का। तो हिज ट्रस्टवर्दीनेस डिपेंड्स अपॉन, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, यू विल बिकम दी ट्रस्टवर्दी। और तीसरा तो मैं हमेशा बोलता हूं, सारे झमेलों की, सारे झगड़ों की एक ही समाधान है, क्या, चुप रहो, बी क्वाइट। बी क्वाइट। 2 आदमी झगड़ा करते हैं, एक आदमी चुप रह जाए, फाइट खुद ही खत्म हो फाइट जाएगा। खत्म हो जाएगी। फाइट को नहीं तो जो बोलना अपने आप में अग्नि में घी डालने के बराबर है। मियां बीवी का झगड़ा क्या चीज से चालू होता है, बोलने से चालू होता है। और बढ़ता कैसे है, जितना आर्गू करेंगे उतना आगे बढ़ता है। अगर पहले किसी ने बोलना ही नहीं कहा, दोनों ये कर लिए कि भाई हम लोग रात को 8 से 10 हम लोग मौन रहेंगे, झगड़ा होगा क्या? झगड़े की जड़ क्या है, बोलना। तो ट्रस्ट भी बढ़ता है, और सब चीज का एक ही, कोई बोले कि पेनिशिया फॉर ऑल डिजीजेस इज बी क्वाइट। नेक्स्ट, जब शब्दों में जब शक्तियां निहित होती है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है। इट्स ए पॉजिटिव। जब कम बोलोगे, सही बोलोगे, जब बुलाया जाए तभी बोलोगे, सार्थकता से बोलोगे, सो दे कम विद द पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी विल अट्रैक्ट ऑलवेज द पॉजिटिविटी फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो यू विल बी सराउंडेड बाय व्हाट, पॉजिटिविटी। तो जो काम चाहोगे वो हो जाएगा, जैसा चाहोगे वो हो जाएगा, बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय द पॉजिटिव एनर्जी। तुम क्या चाहती हो, शुड आई बी सराउंडेड बाय नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी? पॉजिटिव एनर्जी। तो क्या करना चाहिए, जैसे तुम्हारा प्रश्न था कि कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, ये क्वाइट यार, इसमें प्रैक्टिस क्या करना है, डोंट से व्हेन यू आर नॉट स्पोकन टू। दिन में एक व्रत लो कि मैं 4 घंटे से ज्यादा नहीं बोलूंगी, एक साथ नहीं, जितना देर भी बोलूंगी लिखते रहो कि वेदर पर्पसफुल, या रात को इंट्रोस्पेक्शन। डेली ये सोचो, आज मैंने कितनी देर बोला, बकवास तो नहीं किया, झूठ तो नहीं बोला, किसी को आहत तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया। सो धीरे धीरे आदमी क्या होगा, will understand and विल like, अंडरस्टैंड, चुप होता चला जाएगा। yeah. एक व्यक्ति था, उसके पीछे चोर बदमाश पड़ गए, हाँ. गुंडे पड़ गए कि भाई इसको लूटेंगे, मार, और फिर उसको मार देंगे। वो दौड़ता दौड़ता कि मेरे पीछे एंटी सोशल्स पड़ गए। वो देवी का भक्त था, देवी के मंदिर में पहुंच गया, देवी से प्रार्थना की, देवी मैंने तो जिंदगी भर तक तुम्हारी स्तुति की है, प्रार्थना की, और मेरे पीछे देखो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो मुझे बचा लो। तो देवी ने, समझो, से फॉर एग्जाम्पल, देवी ने आवाज कही कि तुम मेरी मूर्ति के पीछे आके छिप जाना, लेकिन एक शब्द है, एक कंडीशन है, तुम बोलना नहीं, तुम कुछ बोलना नहीं। बदमाश लोग आए, देखे मंदिर है, शांति का वातावरण है, पॉजिटिविटी है, मंदिर में शांति थी, सोचे यहाँ तो नहीं है वो। जैसे जाने को हुए, जैसे जा रहे थे, वो आदमी पीछे छिपा हुआ था, बच गया था, देवी की कृपा थी, उन्होंने उसको देखा भी नहीं, ठीक है ना। उसने क्या देखा कि नीचे से एक कॉकरोच पास हो रहा है, अब उससे रहा नहीं गया, कॉकरोच कॉकरोच चिल्लाने लग गया। अब जैसे उसके मुंह से निकला कॉकरोच, क्या किए वो बदमाश और जो गुंडे थे, वो क्या किए, मुड़ के वापस आए, इसका मतलब यहाँ कोई है, और उसको पकड़ लिए, उसका पूरा धन भी लूट लिए, जान पे भी आग के ना गई। देवी को उसने पूछा कि देवी तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? देवी ने क्या कहा, तुमको बोला था ना चुप रहना, तुम चिलचिट्टे से डर गए, गुंडों से नहीं डर लगा, ये नहीं मालूम, तो तुम अगर चुप रहता अगर वो, तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो जब भगवान की भी स्तुति करते हैं, किसी पे ट्रस्ट वर्दी, जो बताया ना, तो शांति से, शांति कहाँ से आती है? बिगेस्ट एडवांटेज इज यू गेट द इंटरनल पीस। बोलना समाधान नहीं है, बोलना समस्या बन सकती है। सबसे बड़ी समस्या क्या है आज हमारे समाज में? सबसे बड़ी समस्या क्या है? टू मच टॉकिंग, टू मच टॉकिंग, गॉसिपिंग, गॉसिपिंग। और सबसे बड़ा इसका जैसे डिसएडवांटेज और क्या हो जाता है, और एडवांटेज क्या होता है? अगर कम बोलोगे तो किसी की निंदा करोगे, पर परिवाद करोगे, किसी पे कलंक लगाओगे, किसी को, जिसको बोलते हैं ना अव्याख्यान पे शून्य, पर परिवाद, दोष लगाना, कलंक लगाना, गाली गलौज करना। क्योंकि जब बोलेगा जो आदमी, एक होता क्वालिटी, एक होता क्वांटिटी।
अगर खाएगा ही, अगर क्वालिटी कम खाएगा तो वो क्वालिटी खाएगा ना, वो ड्राई फ्रूट्स खाएगा, फिर वो लेके चावल, इतना चावल और दाल क्यों खाएगा? और जिसको क्वांटिटी खानी है वो चावल भी खूब लेगा, दाल भी लेगा, और क्वालिटी खाएगा तो मेवा कितनी खाएगा? थोड़ी सी खाएगा। तो जो आदमी कम बोलता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर होती है, क्वालिटी ऑफ एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, क्वालिटी ऑफ उसके लाइफ में शांति बहुत होती है। जो ज्यादा बोलेगा उसकी शांति भी गई, एग्रेशन भी होगा, ही कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम, जैसे अनसोशल जो लोग उसके पीछे पड़ गए थे, दिन भर बोलता रहेगा तो लोग ना तो कोई उसकी सुनेगा और न वो उससे बच पाएगा। दो चार और बता देता हूं मैं। मेनली हिंसा के कारण अगर जब होते हैं, रीजन फॉर वायलेंस इज, हिंसा के 3 पक्ष होते हैं, वाचिक, मानसिक और कायिक। मनसा वैसा कायसा, आदमी मन से किसी का अहित सोचे, मानसिक हिंसा, वचन से बोले, वाचिक हिंसा, यानी गाली गलोच किया, तकलीफ दे दिया, अपशब्द बोल दिया, गलत बोल दिया, और कायिक माने हाथ से मारपीट किया। सबसे ज्यादा परिवारों के बिखरे हुए में कौन सा काम आता है? वाचिक हिंसा। बताया था मैंने पिछले सेशन। तो हम हिंसा से बदल जाते हैं, दूसरों को दुख देने से बच जाते हैं। तो बोलने में तो, नहीं बोलने में तो बहुत एडवांटेज है, साइलेंट रहने में। और एडवांटेज क्या है? ये सब नेगेटिविटी से बच जाते हैं जो हमको अननेसेसरी। अब एक आदमी काम कर रहा है, वो अपना शांति से बैठ के, तुम लोग अपने स्क्रीन को देखते रहते हो और काम करते रहते हो, शांति में हो, माइंड अटेंटिव है, जिसको बोलते हैं मेडिटेटिव माइंड। माइंड भी अटेंटिव भी है, माइंडफुल भी है, अच्छा सोच सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। और वही अगर गाना गाते गाते करोगे तो मन में गुनगुनाना मना नहीं है, लेकिन साथ में एनर्जी भी वेस्ट होती चली जाएगी। तो ऑलवेज से अपने क्या बोलते हैं, बी स्टिल, बी साइलेंट। दो चार और पॉइंट बता देते हैं कि आदमी बोल के अपना भी नुकसान करता है, दूसरे वाले का भी नुकसान करता है। क्या चीज का? समय भी व्यर्थ करता है। अपना नुकसान तो खुद की एनर्जी चली गई, खुद का जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन किससे निकलता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग दोस वर्ड्स? गुस्सा आएगा तो कुछ बोल, गुस्से में बोलेगा, अहंकार अपने ईगो की पुष्टि करेगा तो बोलेगा, लोभ को अपने दिखाएगा, वो बोल के ही ये उसके सारे नेगेटिव एनर्जी जाएगा। तो आदमी बोलेगा ही नहीं तो वो नेगेटिविटी अपने आप क्या सबसाइड हो जाती है, और दूसरे का भी नुकसान करता है, क्योंकि उसका टाइम भी खोटा करता है। वो सुनना नहीं चाहता और वो किसी कारण बैठा हुआ है, या उसको खराब लग गया, तो दैट इज ऑल्सो बैड। तो आदमी दोनों का नुकसान करता है कि नहीं? अब अगर ये समझो कि एक आदमी, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, ऑरेटर में और ऑडियंस में, वक्ता में और श्रोता में, किसकी स्थिति ज्यादा बढ़िया है? मतलब who is supposed to be the bigger person? The person who's quiet, right? Listens. Like, yeah, A listener is more respected than the orator. ऑरेटर ठीक है, अगर मान लो वो सदगुरु है, वो सार्थकता के साथ बोल रहा है, बता रहा है, मोटिवेटिंग कर रहा है, सच बोल रहा है, तो उसका बोलना भी साइलेंट है। साइलेंट, when your words become also silent, यानी whatever you speak the truth, you speak when it is required to, you speak for purpose, you speak for win-win position, तब बोलना भी जरूरी है। बोलना माने ये नहीं है कि हम उसका उपयोग ही ना करें, हम उसका दुरुपयोग ना करें। एंड वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। व्हाट? जैसे तुमने पूछा था इसमें एक कि हाउ टू प्रैक्टिस, लिसन मोर। सिंपल, ये सोच लो कि मैं दिन में 4 घंटे से ज्यादा नहीं बोलूंगा, एंड बी ए पेशेंट लिसनर। कोई भी आए, 2 डॉक्टर थे, एक डॉक्टर के पास मरीज जाते थे, वो जाते ही क्या करता था, अच्छा अपना स्टेथोस्कोप लगाया, ये टेस्ट करवा के लाओ, और टेस्ट आया, ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, ये अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब कर दिया, और ये कर लो, ऐसे करना, वैसे करना। दूसरा डॉक्टर है, रिपोर्ट लेके भी गए उसके पास, उसने देख लिया, नाड़ी भी देख ली, और उसके समझ में आ गया क्या बीमारी है, लेकिन फिर वो पूछेगा, अच्छा ठीक है, तुम्हें आपकी क्या तकलीफ है, क्या इश्यूज है, क्या सिम्टम्स है, भूख लगती है, नींद आती है, मोशन ठीक से होता है? वो एक एक चीज जो उसको मालूम है, वो क्यों पूछता है? कि जो नेगेटिव एनर्जी पेशेंट में ना, वो निकलवाना चाहता है।
he gives a peasant listening to that. Yes. तो आधी बीमारी तो वहीं दूर हो जाती है, क्योंकि वो नेगेटिविटी निकल जाती है. और क्योंकि जो भी उनके मन में वहम होता है कि ये है, Yes. just gets released. तो being a peasant listener Yeah. is a very very important virtue. It's a treatment. आज जैसे मान लो मेरे पास भी जब लोग आते हैं, हाँ. अपनी समस्याओं का लेके आते हैं, गुरुजी इसका सोल्यूशन बताइए, हेल्थ इश्यूज हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, आई डोंट जस्ट टेल देम दैट ये मंत्र कर लो या इसका ये समाधान है या ये कर लो. आई गिव देम द पेशेंट लिसनिंग फर्स्ट. अगर 1 घंटे का सेशन उनके साथ है तो आधी घंटा तक व्हाट आई डू, यू जस्ट लिसन, आई जस्ट लिसन टू देम. और उस आधी घंटा में मैं अपना मेडिटेशन करके अपना सॉल्यूशन निकालता हूं कि बेसिकली उसके लिए कौन सी दवाई मोस्ट सुटेबल रहेगी. उसको साधना का कोई मार्ग बताऊं, भक्ति का मार्ग बताऊं, मंत्रों का कोई सहारा बताऊं, पूजा पाठ बताऊं कि व्हाट ही शुड डू. तो वो सोच रहा है मेरे को सुन रहा है, बट मे नॉट नेसेसरली दैट आई एम लिसनिंग हिम, आई एम अलाउइंग हिम टू टेक आउट हिज, लेट हिम स्पीक. तो वो नेगेटिविटी निकल जाएगी. फिर देन यू कम टू इट. तो लिसनिंग इज ए वेरी बिग आर्ट. जैसे स्पीच बोलना एक कला है, चुप रहना भी एक कला है. ठीक है ना. एक दूसरी बात और, 1-2 बात और बताऊं. हाँ बोलिए. व्हेन यू स्पीक, हु लर्न्स फ्रॉम योर स्पीच? सामने वाला. सामने वाला. आप तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो. और जब आप सुनते हो तब क्या करते हो, आप सीखते हो. Absorb the energy. You learn. Yeah. That means when you speak, others learn. When we listen, we learn. तो अगर हमको लर्निंग सीखना है, अगर हमको अपना विकास करना है, एलिवेट करना अपने आप को, तो क्या करो? Be a good listener. Be a good listener. Speak only when you are spoken to. नहीं तो मत बोलो. जैसे बताया क्या भाई कि जो परिवार आज बिखरता है या परिवार में सामंजस्य नहीं रहता या समाज में सामंजस्य नहीं होता, किसके कारण? उल्टा पुल्टा बोल दिया. द्रौपदी ने कह दिया अंधे का बेटा अंधा. क्या हुआ? क्या हुआ? पूरी महाभारत रच गई. महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? कि द्रौपदी ने दुर्योधन को ललकार दिया कि, क्योंकि इस हिसाब से वो बना हुआ था कि जहां पानी था और दिखाई नहीं दे रहा था पानी, पानी नहीं था लेकिन लग रहा था पानी है, तो वो गिर गया उसमें. तो उसने क्या कहा? अंधे का बेटा. क्योंकि दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र थे. अंधे का बेटा अंधा. और क्या हो गया? महाभारत का युद्ध हो गया. तो कई बार बोलना इतना अहितकारी होता है कि सारा बना बनाया काम खराब हो जाता है. एक लास्ट एक एग्जांपल के साथ तुम्हें बताता हूं. लेट मी कंक्लूड दिस. एक संत महात्मा, स्वामी जी समझो, एक जगह बैठे हुए थे. एक गाय दौड़ती दौड़ती आई और वो वहां से 2 डायरेक्शन निकल रहे थे, लेफ्ट और राइट में. और वो लेफ्ट साइड में गाय भागती चली गई. थोड़ी सी देर में एक कसाई आया. कसाई ने पूछा महात्मा जी से कि गाय किधर गई? अगर वो बोलेंगे लेफ्ट में गई तो जाके गाय को मारेगा, और राइट में अगर तो झूठ हो गया. राइट में तो गई नहीं. सो बेटर टू बी क्वाइट. क्योंकि एक जगह लेफ्ट में सही बताते हैं तो गाय मारी जाएगी. तो हिंसा का कारण ये भी बनेंगे. सो इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. और राइट बोले तो गलत बोला. तो you said you shouldn't lie also. You should not lie also. तो यहाँ क्या काम आएगा? Silence. Just be quiet. तो जहाँ नहीं जरूरत हो, let the कसाई डिसाइड किस क्या करना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है. आधे समस्याओं का समाधान है चुप रहना, कम बोलना. बोलो तो मृदुभाषी बोलो, जरूरत हो तो ही बोलो. दैट इज कॉल्ड प्रिजर्व योर पावर. बी ए प्रॉपर elevator. Right? Yes. और कोई क्वेश्चन? All good. Thank you so much. Thank you very much all of you for giving me patient listening.